Friends, we were reading the chapter 3rd in history, ruling the countryside, and we have also read about the company becomes the divan and revenue for the company and how the company collect the revenue for their expenses and the need to be improve agriculture and how to improve the agriculture during the British colonial period and who was the implemented this policy. And the Charles Cornwallis, he was the Governor General of India. That time he introduced the permanent settlement in 1793. And after that, what was the problem of this policy? And we have also read about that, and now we will read a new system is devised after the permanent settlement when he was failure. And the new system was devised by Thomas Monro, and he was the governor of Madras during 1819 to 1826. By the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. How could revenues be fixed permanently at a time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade? In the northwestern province of the Bengal Presidency, most of this area is now in Uttar Pradesh. An Englishman called Hord Mackenzie devised the new system which came into effect in 1822. He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. Under his directions, collectors went from village to village, inspecting the land, measuring the fields, and recording the customs and rights of different groups. The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village mahal had to pay. This demand was to be revised periodically, not permanently fixed. The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman rather than the zamindar. This system came to be known as the Mahalwadi settlement. After the failure of the permanent settlement, and the first improvement in the sector of agriculture was introduced by the Charles Cornwallis, and he was the Governor General of India, and he introduced the permanent settlement. Okay, but the permanent settlement was failure because the revenue was fixed in this policy, and the new system was devised by Holt Mackenzie, and he introduced the new system is called Mahalwadi settlement. Okay, and this system was introduced in the area of northwestern province of the Bengal Presidency, and most of area is now in Uttar Pradesh, and where an Englishman called the Holt Mackenzie devised the new system is called Mahalwadi system, and it was effect in 1822. And he felt that the village was an important social institution in North Indian society. Okay, उन्हें लगता था किसको? हॉल्ट मैकेंजी को. ओके, हॉल्ट मैकेंजी को लगता था कि गांव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थान है उत्तर भारतीय समाज में, और उसको प्रिजर्व करने की आवश्यकता है. तो उसकी डायरेक्शन में ही जो कलेक्टर्स थे वो गांव से गांव में जाते थे, लैंड्स को इंस्पेक्ट करते थे, फील्ड्स को मेज़र करते थे, और जो कस्टम्स से जो जातियाँ थीं या जो अलग अलग जो ग्रुप्स के अधिकार थे उनको रिकॉर्ड किया जाता था, है ना. तो जो एस्टिमेटेड जो रेवेन्यू होता था प्रत्येक प्लॉट का गांव के अंदर, उसको ऐड करके कैलकुलेट किया जाता था. और रेवेन्यू जो प्रत्येक गांव को क्या कहा जाता था? महल कहा जाता था. प्रत्येक गांव जो है उसको क्या करता था? रेवेन्यू को पे करता था. ये जो डिमांड थी उसको पीरियडिकली क्या किया जाता था? उसको रिवाइज किया जाता था. ऐसा नहीं उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम उसमें चेंजेस होते थे. बट देयर वॉज नॉट परमानेंटली फिक्स्ड, है ना. लेकिन वो परमानेंटली क्या था? फिक्स नहीं था.
जैसे हमने परमानेंट सेटलमेंट में पढ़ा कि परमानेंट सेटलमेंट को चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। उसके अंदर जो लैंड रेवेन्यू लिया जाता था वो क्या होता था, वो फिक्स होता था। तो जब फिक्स उसको कर दिया गया था तो कई बार क्या होता, फसल ख़राब हो जाती थी, तो जिसके कारण जो है जो किसान, जो पीसेंट्स सेक्शन होता था वो क्या है, वो कर्जा चुकाने में जब सक्षम नहीं होता था तो उसे साहूकारों से, मनी लेंडर से कर्जा लेना पड़ता था, और कर्जा लेकर के वो उसको चुका पाता था। कई बार फसल में जो है उनको नुकसान भी होता था। तो उसका प्रभाव ये हुआ कि जो है वो जो पॉलिसी बनाई गई थी वो ज़्यादा प्रभावी साबित नहीं हुई। अब ये एक नई पॉलिसी जो क्रिएट की गई हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, जिसको 1822 में इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया था, और वहाँ प्रत्येक गांव को महल का नाम दिया गया जो कि पूरा रेवेन्यू पे करता था, ठीक है ना। और उसको पीरियोडिकली क्या किया जाता था, एक तरीके से उसको रिवाइज किया जाता था, ठीक है, वो परमानेंटली फिक्स नहीं था। और जो कलेक्टिंग चार्ज होता था रेवेन्यू को, वो कंपनी जो है पे करती थी, है ना, गांव के लिए। गांव का जो मुखिया होता था वो कंपनी के लिए क्या करता था, उसको पे करता था। हेडमैन के अतिरिक्त जो जमींदार होते थे, ठीक है ना। तो ये जो सिस्टम है उसको महलवाड़ी सिस्टम के नाम से या महलवाड़ी सेटलमेंट के नाम से जाना गया। अब इसमें दो चीज़ आपको याद रखनी है ना। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि हु डिवाइस द महलवाड़ी सिस्टम, एंड हिज नेम वॉज हॉल्ट मैकेंजी। ओके, कि महलवाड़ी जो सेटलमेंट था उसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। कब किया था, तो ये भी याद रखना है, कब किया था, 1822, है ना, यानी 1822 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, तीसरा पॉइंट क्या है इसमें कि भारत के कौन सी क्षेत्र में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, तो वो कौन सा क्षेत्र था, वो था नॉर्थ वेस्टर्न, है ना, एरिया। बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी उसका जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, जो कि वर्तमान में क्या है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही याद रखने की आवश्यकता है। और गांव को इस सिस्टम के क्या कहा जाता था, गांव को क्या कहा जाता था, महल। गांव को महल के नाम से जाना जाता था। तो ये एक प्रकार का जो है एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए जो एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्रिएट किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। परमानेंट जो सेटलमेंट था और जो महलवाड़ी सेटलमेंट था, दोनों में अगर डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो दोनों में क्या अंतर है कि परमानेंट जो सेटलमेंट था उसमें जो ज़मींदार होते थे, ठीक है, वो सीधे रेस्पॉन्सिबल होते थे। वो किसानों से क्या करते थे, वो पेमेंट लेते थे, जो कलेक्शन करते थे। कलेक्ट करने के बाद वो कंपनी को पे करते थे, ठीक है। और उनका जो रेवेन्यू था वो कैसा था, फिक्स था। यहाँ पर कोई फिक्सेशन नहीं था। अकॉर्डिंग टू लैंड अगर हम देखें, लैंड के अनुसार उसको जो है रेवेन्यू देना होता था, और रेवेन्यू में उसको पीरियोडिकली क्या किया जाता था, रिवाइज किया जाता था, ठीक है ना। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे इसमें, इसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है द मुनरो सिस्टम, है ना। मैंने अभी आपको बताया मुनरो कौन थे, मुनरो थॉमस मुनरो, एंड ही वॉज द गवर्नर ऑफ मद्रास ड्यूरिंग द 1819 टू 1826, यानी कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसके जो गवर्नर थे थॉमस मुनरो। जब ब्रिटिश पीरियड था तो ब्रिटिश पीरियड के दौरान पूरा जो भारत था वो चार जो है तीन मेन प्रेसिडेंसीज थी, है ना। मद्रास था, बॉम्बे था और बंगाल था। और एक हमारा जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स थे, इनको जो हाँ आज हम जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं उनको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वॉज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। द न्यू सिस्टम दैट वॉज डिवाइड केम टू बी नोन एज द रैयतवार और रैयतवाड़ी। ओके, it was tried on a small scale by Captain Alexander Reed in some of the areas that were taken over by the company after the wars with Tipu Sultan. Subsequently developed by Thomas Munro, this system was gradually extended all over South India. तो ये जो सिस्टम था इसको धीरे धीरे पूरे साउथ इंडिया के अंदर इसको क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी साउथ में, ठीक है, वहाँ क्या है कि जो आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट था उससे लोग जो है काफ़ी दूर हो रहे थे। तो एक जो नया सिस्टम जिसको डिवाइस किया गया था उसको रैयतवार या रैयतवाड़ी के नाम से जाना गया। और इसको ये एक छोटे पैमाने पर अगर हम कहें तो ये कोशिश की गई थी अलेक्जेंडर जो थे अलेक्जेंडर रीड, है ना,
कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर कि कंपनी वॉर्स में हिस्सा लिया था, है ना, कंपनी जहाँ युद्ध लड़ी थी टीपू सुल्तान के साथ, उस उन क्षेत्रों के अंदर जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या है, थॉमस मुनरे ने इसको विकसित किया और ये सिस्टम जो है धीरे धीरे पूरे साउथ इंडिया में फैल गया। रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स। रीड और मुनरो को लगता था कि जो साउथ का क्षेत्र है, जो दक्षिण का क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर कोई भी पारंपरिक जमींदारी नहीं है ना, कोई भी पारंपरिक जमींदार नहीं था उस समय। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स एंड हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशंस। Their fields had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. तो ये जो सेटलमेंट था उसमें उन्होंने ये कहा, किसने, रीड और मुनरो ने, कि ये सीधे तौर पर जो कल्टीवेटर्स थे, जिनको रियौत कहा जाता था, कल्टीवेटर्स यानी जो फार्मर्स होते थे उनको क्या कहते थे, उनको रियौत के नाम से जाना गया था। इसलिए सिस्टम को क्या कहा गया, रैयतवाड़ी कहा गया है ना। जो रियौत शब्द आ रहा है ये फार्मर्स के लिए होता था, ठीक है, पीसेंट्स के लिए। तो वो जब अपने खेती को जोतते थे, टिल करते थे, ठीक है ना, जनरेशंस के लिए, तो उनके जो खेत होते थे उनको सावधानी पूर्वक अलग सेपरेटली सर्वे किया जाता था, अलग अलग तरीके से। जब उनको रेवेन्यू असेसमेंट किया जाता, रेवेन्यू असेस करने से पहले उनकी भूमि का क्या किया जाता था, सर्वे किया जाता था। मुंडो का विचार था कि ब्रिटिश शुड एक्ट एज पैटर्नल फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द रियर्स अंडर देयर चार्ज। तो मुनरो का विचार ये था कि जो ब्रिटिश हैं, है ना, उनको एज अ फादर, ठीक है ना, फादर फिगर के रूप में जो है रियर्स जो हैं, जो फार्मर्स हैं, अपने चार्जेस में, अपने अंडर में जो है उनको क्या करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिससे कि हम एग्रीकल्चर को ज़्यादा और इम्प्रूव कर सकें। ऑल वॉज नॉट वेल, सब कुछ अच्छा नहीं था। जैसे हमने पढ़ा, हमने अभी तक 3 सिस्टम पढ़े। पहले हमने कौन सा पढ़ा, परमानेंट सेटलमेंट। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, है ना, महालवाड़ी सेटलमेंट। और तीसरा हमने कौन सा पढ़ा, रैयतवाड़ी, है ना, जिसको रैयतवाड़ी कहा गया। रैयतवाड़ी जो सेटलमेंट था, या उसको हम मुनरो सिस्टम भी कहते हैं। 3 ऐसे सिस्टम्स थे जो अलग अलग क्षेत्रों में भारत के उस समय इम्प्लीमेंट किए गए थे फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन। कंपनी को रेवेन्यू चाहिए था अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, तो उन्होंने विचार ये किया कि अगर हम कृषि क्षेत्र को इम्प्रूव करें तो हमें वहाँ से ज़्यादा जो है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए इन तीनों सेटलमेंट्स को अलग अलग क्षेत्रों में इम्प्लीमेंट किया गया। परमानेंट सेटलमेंट जो है वो विफल रहा। उसके बाद एक और सेटलमेंट आया और उसको हम कहते हैं महालवाड़ी सेटलमेंट, जिसको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। मुंडो सिस्टम साउथ में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये जो सब कुछ हुआ, ठीक है ना, उसका सबसे मूल उद्देश्य क्या था कि किसी भी प्रकार से हमें उनसे टैक्स जो है वो कलेक्ट करना है और हमें अपने खर्चों को जो है कैसे बहन करना है ना, क्योंकि कंपनी के बहुत सारे खर्चे होते थे। कंपनी जो है एक आर्मी मेंटेन रखती थी और जितने अधिकारी होते थे, उनके जो ब्रिटिशर्स होते थे, उनके काफ़ी जो है हाई लेवल के खर्चे होते थे। तो उनको मेंटेन रखने के लिए जो है उन्होंने इस प्रकार का लैंड रेवेन्यू कलेक्शन जो है इम्प्लीमेंट किया था। ऑल वॉज नॉट वेल, सब कुछ अच्छा नहीं था। विदिन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम वॉज इम्पोज्ड, it was clear that all was not well with them. Driven by the desire to increase the income from land, revenue officials fixed too high a revenue demand. Peasants were unable to pay. Riots fled the countryside and villages became deserted in many regions. Optimistic officials had imagined that the new systems would transform the peasants into rich enterprising farmers, but this did not happen. कुछ ही वर्षों के साथ, है ना, एक जो नया सिस्टम जिसको इम्पोज किया गया था उससे ये साफ हो गया था कि सब कुछ उनके साथ अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो अपने डिज़ायर को ड्रिवन करने के लिए, अपने जैसे मैंने बताया कि अपना इनकम इंक्रीज करने के लिए, तो उन्होंने लैंड रेवेन्यू का यूज़ किया। तो जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे उन्होंने रेवेन्यू का जो डिमांड था, है ना, जो रेवेन्यू की मांग थी उसको बहुत ज़्यादा हाई कर दिया, उसको फिक्स भी कर दिया गया था। तो जो पीसेंट्स थे, जो काश्तकार थे, जो किसान थे, वो उसको पे करने में असमर्थ थे। तो जो रियोस थे उन्होंने पूरे कंट्री साइड के अंदर जो देहाती जो क्षेत्र होते थे उन क्षेत्रों में उसका गुस्सा फूटा। गांव अब जो है बहुत सारे गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उनका विरोध होने लगा, ठीक है ना। और जो ऑप्टिमिस्टिक ऑफिसर्स थे, जो आशावादी अधिकारी थे, है ना, उन्होंने ये आशा की थी
कि जो नया सिस्टम है वो पीसेंट्स को एक रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स के रूप में, एक अमीर किसान के रूप में क्या करेगा, बदलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका उद्देश्य तो ये था कि किसी भी प्रकार से हम इसको इम्प्रूव करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो उससे हमें ज़्यादा लैंड रेवेन्यू मिलेगा, किसानों की भी प्रगति होगी। जब किसान प्रगतिशील होगा तो वो हमें ज़्यादा टैक्स पे कर पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आगे का जो अभी हम आगे जो है वो हम पढ़ेंगे क्रॉप्स फॉर यूरोप। तो क्रॉप्स फॉर यूरोप के बारे में मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊँगा। ठीक है।